हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। गुड टू सी यू अगेन। चलिए आज करते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स रिटन ऑन द बोर्ड। लेट्स जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू आंसर इट टुगेदर। इट इज सेइंग दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। देखिए, हम वेलोसिटी के बारे में एंड स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। अब उसी से रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि क्या आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा स्पीड ही होता है? इज इट ऑलवेज ट्रू और इज इट ट्रू इन सम सिचुएशंस? सी, one thing is you have to understand that whenever it is asked about the magnitude of velocity, unless it is mentioned, this velocity that we are talking about in the question is always the instantaneous velocity. So you have to mention here that yes, the magnitude of instantaneous velocity is always equal to speed. आपके पास कोई भी मोशन का पाथ फॉलो करे ऑब्जेक्ट, I mean be it straight line, be it a curved path or any kind of path, आपके पास क्या रहेगा? उसमें वेलोसिटी है अगर आपकी, उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इवैल्यूएट की गई वेलोसिटी। तो इफ योर वेलोसिटी इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आप उसका मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज 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 बी इक्वल टू स्पीड. So in this question, where it is not specified that whether they are talking about instantaneous velocity or they are asking about average velocity, you have to clarify this thing by yourself that yes, the magnitude of instantaneous velocity is always equal to speed, but this is not true in case of average velocities. Average velocity में again the direction comes into play and it begins to play a very important role. अगर आपके जो ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन दैट केस योर एवरेज वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड्स मैग्नीट्यूड. बट if it is following some other path, suppose it undergoes some kind of bend in its path, तो क्योंकि आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? Average velocity is always evaluated using the displacement, but average speed is always evaluated using distance. So in case your object is moving on a path which is not having a fixed direction, in that case the displacement value will be different from the distance value. Distance will be the total length of the path which is covered, which in this case is obviously this complete length, and the displacement will be the shortest distance between the initial and the final position, which will be somewhat like this. So obviously the length of this path and the length of this path are different. This makes the value of the average velocity different from the value of your average speed. Okay, so your average velocities are equal to average speeds only if that object is moving in the fixed direction, because if it is moving in one fixed direction, in that case the displacement is equal to distance. तो जहां पे displacement और distance ही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि distance और displacement को यूज करके ही आपकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकाली जाती है, तो इन दैट केस आपकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी इफ योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. That means this is the only situation where your average velocity can be equal to average speed, but not in other cases where the object is undergoing any kind of bend, right? So to answer this question, you have to mention that instantaneous velocities are always equal to the value of speed. They are always equal to the value of speed regardless of the direction. वहां डायरेक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी चाहे आप इस पाथ में निकालें विच इज अ बेंड पाथ, चाहे आप स्ट्रेट लाइन पाथ में निकालें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी स्पीड की, जो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वो हमेशा स्पीड के इक्वल आएगा. लेकिन फर्क किस पे पड़ता है? सिर्फ एवरेज वैल्यूज पे. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, here's your second question written on the board. Let's read it also. Can an accelerating body have a zero velocity?
आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेटिंग बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई एंड रिकॉल दैट व्हेन डू वी हैव एक्सेलरेशंस इन अ बॉडी. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ मोशन, देन व्हाट इज द सिचुएशन कि जब उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होती है. This is something we have already discussed in our previous videos, but let's just quickly recall the fact. देखिए एक्सेलरेशन जो होती है आपके सिस्टम में, this will always be equal to 0 if there is no variation in velocity. First thing आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास सिस्टम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी अगर वेलोसिटी में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वेलोसिटी में आपके पास दो तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन बदल सकती है या उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है. यही दो पैरामीटर्स हैं विच गवर्न द वैल्यू ऑफ और विच गवर्न द फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी. तो आपके पास इन दोनों में से किसी भी पैरामीटर में अगर चेंज आता है तो द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू एक्सेलरेट. So acceleration is a physical quantity which comes into activation only when the velocity of an object is undergoing a certain kind of change. That change could be the change in the direction, that could be the change in the magnitude of the velocity, or that could be change in both the quantities. I mean both direction as well as the magnitude of the object is changing. लेकिन क्योंकि हमारा जो discussion है वो motion in one dimension का है, तो motion in one dimension में we have to strictly confine our discussion to the point where the object is moving in straight line. तो हम इसमें curved path का discussion को consideration में नहीं लेते हैं, and we just consider that we have an object which is moving in a straight line. Straight line में वो move कर सकता है. Straight line में वो दो directions में move कर सकता है. एक आपके पास ये direction है और एक आपके पास ये direction. Because this is something you already know that there are two possible directions which are associated with a straight line. तो अगर आपके पास straight line है जिसका कि मतलब है motion in one dimension motion है, मतलब ऑब्जेक्ट ने आपका straight line में मूव करना है. Straight line में अगर उसे मूव करना है तो it has two possibilities. That means there are two possible directions in which your object can move. आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और आपका ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है. किसी एक डायरेक्शन में मूव करने से या उसके रिवर्स मूव करने से उसका स्ट्रेट लाइन वाला प्रिंसिपल डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड दो डायरेक्शंस होती हैं, राइट. तो अभी हम ये मानते हैं कि फिलहाल जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर कर रहे हैं दैट वेरिएशन फिलहाल जो हम ले रहे हैं दैट इज बिकॉज वी हैव टू कंसिडर द केस ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स वी हैव टू कंसिडर वेरिएशन इन द वेलोसिटी. और क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, सो वी जस्ट हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सच थिंग्स. तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, एंड इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, the only kind of possible change which is allowed in velocity is the change in magnitude. Because अगर वो एक लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज को तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है. तो वेलोसिटी के कौन से चेंजेस को हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं? ओनली द चेंजेस विच आर गोइंग टू कम इन द मैग्नीट्यूड पार्ट. बिकॉज स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माने कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है. तो अगर हमें एक्सेलरेशन का केस लेना है, मीन्स वी हैव टू assume a situation where we are having non-zero acceleration. I mean the system is accelerating. इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है. इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है. बिकॉज डायरेक्शन तो हमने बता दिया कि उसकी फिक्स्ड रहेगी, दैट वी आर नॉट अलाउइंग टू चेंज. So it means now we are considering a case where acceleration is zero due to the fact that the magnitude of the object's velocity is changing. तो अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो. See, you have to have a change in the magnitude of the velocity all the time. Then is it possible to have a zero velocity? तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा yes. आंसर टू द क्वेश्चन विल बी yes. वो हम देखते हैं कि yes क्यों है. देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन पर है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने से क्या होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी है डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन कि हम वो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, वो किस तरह का चेंज है, वो इंक्रीमेंट है, आई मीन स्पीड है जो भी ऑब्जेक्ट की, जो उसकी गति है वो समय के साथ बढ़ रही है या वो समय के साथ कम हो रही है। दोनों तरह के चेंजेस पॉसिबल है। तो अगर सपोज हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का सपोज स्पीड उसका बढ़ रहा है, मतलब सम काइंड ऑफ चेंज इज देयर, नाउ व्हेनेवर द चेंज इज देयर, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिर तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी कभी भी वेलोसिटी जीरो आए while it is in the accelerated state. If it is in the accelerated state, then it is not possible that it is attaining zero velocity at some time unless the object undergoes a reversal in the direction. देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनिशियली हम ये मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है सपोज वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद आफ्टर रीचिंग after covering a certain distance, after reaching a certain point, it decides to reverse its direction because straight line में reversal possible है, उसकी लाइन तो चेंज नहीं हो रही ना अगर वो रिवर्स करता है डायरेक्शन को। तो अगर सपोज वो पॉइंट ए से शुरू होता है और पॉइंट बी तक जाता है एंड एट पॉइंट बी इट डिसाइड्स टू जस्ट रिवर्स इट्स पाथ, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में अपनी जर्नी शुरू कर देता है। तो इन दैट केस अगर आपके पास ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सपोज हम इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले लेते हैं, suppose this direction of motion is positive because whenever you're talking about velocities you have to associate the direction of the velocity with a positive or a negative sign. तो हमने ये मान लिया है कि आपके पास जो ये वाली डायरेक्शन है which is this way, इसको आपने अगर पॉजिटिव इंडिकेट कर लिया है, तो अभी अगर आपका ऑब्जेक्ट A टू B मूव कर रहा है, A टू B मूव करने में जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसके साथ जो डायरेक्शन एसोसिएटेड रहेगी दैट विल बी पॉजिटिव। उसके बाद आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट सपोज इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, इट डजंट स्टॉप्स बट इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, वो यहां से वहां गया फिर उसने वापसी शुरू कर दी। व्हेन इट इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, नाउ द न्यू डायरेक्शन व्हिच इज दिस वे will be indicated by a negative sign. That means now when the object has undergone a reversal in the direction, तो आपके पास जो वेलोसिटी, सपोज आपके पास जाते वक्त जो भी वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू को हमने पॉजिटिव बोल दिया, लेट्स से whatever is the velocity. एक्चुअली एक वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है, तो चेंज इन वेलोसिटी है, यू विल हैव नंबर ऑफ वेलोसिटीज फाउंड ऑन द पाथ। पूरी जर्नी में ए से बी आपको बहुत सारी वेरिंग वेलोसिटीज मिलेंगी, पर वो सारी वेलोसिटीज के साथ जो साइन चलेगा वो पॉजिटिव साइन चलेगा, राइट, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अभी जब उसने रिवर्सल करा, फिर रिवर्सल में भी वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, वो वेलोसिटीज के साथ जो साइन चलेगा वो नेगेटिव चलेगा। Those will be negative sign because the negative sign is indicating that now the object has started moving in the reverse direction. तो जब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो बीच में वो कहीं पर जीरो भी होगी, बीच में आपकी वेलोसिटी कहीं पर जीरो भी होगी। Though it will be for a small moment, it will be a momentary velocity. I'll not say that it is going to be a velocity which is going to be there and it will stay intact. This velocity value 0 will be there, but it will be there for a very small moment. And why would it be there? Because when the object is going in one direction, reversing its direction, then at the point of reversal, वेलोसिटी का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, दो इट विल बी फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट। तो यस, यू विल से दैट एक्सेलरेटिंग बॉडी कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी only if it is undergoing a reversal in its direction. Then at the point of reversal, the value of velocity would be momentarily zero, right? Okay, so our third question is it possible for an object having constant velocity to have varying speed? क्या ये मुमकिन है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाए? इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक अबाउट दिस। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। लेट्स सी हाउ। देखिए,
साफ साफ बता दिया गया क्वेश्चन में दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब the two parameters which make up any vector, that is the magnitude as well as the direction, both must be constant. Both must be constant. तो यहाँ पे बताया गया है कि velocity constant है. Velocity constant है मतलब उसका direction भी unchanged है और उसका magnitude भी unchanged है. Direction भी unchanged है, magnitude भी unchanged है. और velocity का magnitude ही तो speed होती है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है. तो इन दैट केस आपके पास आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट इज मेंशन्ड, व्हिच क्लियरली मीन्स दैट इट इज नीदर अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन नॉर इट इज अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड. सो हाउ कैन द स्पीड चेंज? हाउ कैन द स्पीड चेंज? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. ओके, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. इट सेज when velocity is constant, you have to read the statement very carefully because everything holds a meaning and it is going to impact your answer. So when velocity is constant, can average velocity over any time interval be different from instantaneous velocity? Very simple to answer, I think. देखिए, जहां पर ये मेंशन कर दिया गया है velocity is constant, तो वही सेम चीज जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताई है वही सेम एक्सप्लेनेशन यहां भी चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ना उसकी डायरेक्शन बदल रही है ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है. कुछ भी नहीं बदल रहा दोनों में से. मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा और डायरेक्शन नहीं बदल रही है, मतलब वो एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन. इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स में ही आपको फिक्स डायरेक्शन अचीव हो सकती है, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइन के साथ एसोसिएटेड दो डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो दूसरी डायरेक्शन पे नहीं जा रहा, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पर है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट माने नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड नो चेंज इन डायरेक्शन. दैट मींस इट इज मूविंग इन वन फिक्स्ड डायरेक्शन. इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. इन दैट केस आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो सकती है. हाँ, हो सकती है, होगी, हो सकती नहीं, होगी, उसके बराबर होगी, क्योंकि इस केस में आपके पास जहां पर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है. यूनिफॉर्मिटी आ जाती है मतलब पूरे जर्नी में मैग्नीट्यूड एक ही रह रहा है. अगर पूरे जर्नी में मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी एक ही रह रहा है तो अगर आप उसका एवरेज निकालें तो भी आपके पास वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसी के बराबर आएगा एवरेज भी. और किसी भी इंस्टेंट की अगर आप वेलोसिटी निकालें, जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पर भी आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही आने वाला है जो कि आपका इकलौता मैग्नीट्यूड है. आई मीन बिकॉज इट इज हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. यू नो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी वही आएगा, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी वही आएगी. दैट मीन्स दिस इज वन सिचुएशन वेयर योर एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इट विल बी इक्वल टू रादर. ठीक है. So that's all for today. I hope you understood the questions and their answers as well. So stay tuned and we'll meet in the next video. Thank you.